Question number 7, essay 500. Nature and timing of audit procedures change if data is in the electronic form. ये क्वेश्चन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले ये क्वेश्चन आता ही नहीं था, ऐसा कोई टॉपिक डिस्कशन में आता ही नहीं था. With the changing scenario, when you will go for audits, you will not see any paper documentation or hardly any paper documentation. Okay, everything is processed on softwares, every information is available on electronic mode, everything is based on real time. Real time means transaction अभी हुआ तो रिकॉर्ड अभी होगा. ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए एज अ ऑडिटर? हमें तो ऑडिट प्रोसीजर ही करना चाहिए, हमें तो ऑडिट प्रोसीजर ही करना है. लेकिन हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है एंड टाइमिंग ऑफ वर्क है वो बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा. नेचर ऑफ वर्क कैसे बदलेगा और टाइमिंग कैसे बदलेगी? तो कुछ डेटा ऐसे होते हैं, इनफैक्ट अब तो सारे डेटा ऐसे होते हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलेंगे. ओके, या फिर अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो थोड़ा मैनुअल मोड पे ऑपरेट करती है और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ऑपरेट करती है, सो इट इज़ डिपेंडेंट सेमी ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलेगी. सेल्स इनवॉइस होगा, जब जब सेल होगा आपको इलेक्ट्रॉनिकली वो सेल्स अवेलेबल हो जाएगा, जैसे ही सेल होगा इट विल बी रेडी. सैलरी तो मंथ एंड पे ही मिलेगी, मतलब सैलरी की डिटेल्स तो मंथ एंड पे ही मिलेगी. So when we are talking about electronic data, we have to understand what is the availability of the information, and based on the availability of the information we will decide the nature and timing of our audit procedures. जो information जिस टाइम पे relevant होती है उस टाइम पे चेक करना ज़रूरी है. If you miss the bus, you will be late or you will not reach your destination. When we talk about electronic form, we talk about systems. They are system driven. System या तो चलेगा, system या तो नहीं चलेगा. System के साथ एक दूसरा क्या बोलते हैं, एक दूसरा पहलू भी है, और you can say the side effect. The storage of information is limited in whatever electronic form you use. Gmail में भी storage की एक लिमिट होती है. जब storage फुल हो जाता है तो हमें storage को फिर से रिस्टोर करने के लिए डेटा डिलीट करना पड़ता है. कंपनीज ऑलमोस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड पे रखती है, स्कैन करके रखती है, images बना के रखती है. Basically the system is so designed that everything is available on electronic mode. ऐसा हो सकता है कि ये information डिस्कार्ड हो जाए, या ये information डिलीट हो जाए, या ये information किसी तरीके से रिट्राइवेबल ना रहे. कभी कभी we cannot have access to the information because of some virus or something. So when we are talking about information which is based on electronic mode, we must ensure that the company has managed to have safety on the storage of data where the information does not get discarded, or there is a backup, the information is retrievable.
If there is a scenario where the information is not available or the backup is not available for a certain point of time, in that case, we will have to see what procedures we can do. Auditor can do two things. ऑडिटर बोलता है कि एक काम करो, आपका जो इंफॉर्मेशन है उसका पूरा का पूरा बैकअप मुझे दे दो. जैसे नॉर्मल बेसिक सॉफ्टवेयर जैसा टैली होता है, टैली में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर सकते हैं. डू यू नो अबाउट दिस फीचर? आर यू अवेयर अबाउट दिस फीचर? The entire system can be exported to somebody else's system, so that the auditor will ensure that whatever information is there is not lost, or the auditor will have to go and perform the audit procedure whenever the information is retrieved again. हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने पास रिटेन करके रखे, या फिर जब जब इंफॉर्मेशन मिले या जब भी इंफॉर्मेशन मिले उस टाइम पे जाके हम ऑडिट करें. सिंपल इजी क्वेश्चन. जस्ट टेक 2 minutes, रीड. क्वेश्चन नंबर 8. सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. डे 1 से हम ये वर्ड सुनते आ रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन क्वालिटी, efficiency, I mean we are talking about sufficiency and we are talking about appropriateness of the evidence that we obtain. What do you mean by audit evidence? ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या? ऑडिट एविडेंस का मतलब इंफॉर्मेशन. होगा तो इंफॉर्मेशन ही. ऑडिट एविडेंस में क्या होगा? होगा तो इंफॉर्मेशन. लेकिन इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं. इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं. तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जिसको हम बेटर वर्ड्स में ऑडिट एविडेंस बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए. दोनों का इंटरकनेक्शन है पर दोनों का मतलब अलग है. When we use the word sufficiency, sufficiency मतलब quantity, and when we use the word appropriateness, we mean quality. How sufficient is the information to come to a conclusion? क्या हमने जो quantity of information निकाली है, उस information से उस इंफॉर्मेशन को हम एविडेंस मान सकते हैं और उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. जो इंफॉर्मेशन हमने निकाली है वो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? क्वालिटी मीन्स वेदर द सोर्स इज रिलायबल और रेलेवेंट, जिसके बेसिस पे हमने इंस्पेक्शन किया, जिसके बेसिस पे हमने इंक्वायरी की. क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम एज अ एविडेंस यूज करेंगे, क्या वो बराबर है? ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि जो इंफॉर्मेशन को यूज करके एज अ एविडेंस वो कंक्लूजन पे जाने वाला है, वो एविडेंस क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज बराबर है, जिसके बेसिस पे वो कंक्लूड कर सकता है? उसके लिए ऑडिटर के पास एक ही तरीका है कि वो सही तरीके से ऑडिट प्रोसीजर्स करे. ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन यानी प्लानिंग स्टेज पे बहुत ध्यान दें.
इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे सारे प्रोसीजर्स एंड टू एंड बराबर करें। ऐसे 500, 600 सीरीज में जो कुछ भी दिया है वो सारे प्रोसीजर्स करे एंड बेस्ड ऑन दैट वो इंफॉर्मेशन निकाले जो क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज बराबर है टू कम टू अ कंक्लूजन। क्योंकि बिना ऑडिट एविडेंसेस के ना तो हम रिपोर्ट बना सकते हैं ना तो हम ओपिनियन दे सकते हैं। ऑडिट एविडेंस हमेशा ग्रुप इम्पैक्ट में चलता है। ऑडिट एविडेंस हमेशा एक ग्रुप इम्पैक्ट पे चलता है। हम एक एक चीज़ों को देखकर एविडेंस का कंक्लूजन नहीं कर सकते। हमने कलेक्टिवली जो ऑडिट प्रोसीजर्स किए हैं, सारे प्रोसीजर्स को मिलाने के बाद हमने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है उसके बेसिस पे ऑडिटर डिसाइड करेगा कि ये इंफॉर्मेशन बराबर है एज अ ऑडिट एविडेंस और नॉट। At times, auditor refers to previous year's audit also. He may talk to previous year auditor also. He may take help of internal auditors also. He may take help of experts also. सबूत होना चाहिए। सबूत कहाँ से आ रहा है that is not important. सबूत होना चाहिए that is important. सबूत मतलब इंफॉर्मेशन जिस पे हम भरोसा कर सके, जिसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सके एंड तब जाके हम ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन दे सके। सोर्स, भाई ऑडिट एविडेंस का मतलब है इंफॉर्मेशन। अब वो भी कौन सा इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही होंगे, मेजरली फाइनेंशियल डेटा ही होगा। ये इंफॉर्मेशन आपको बाहर से भी मिल सकता है और कंपनी के अंदर से भी मिल सकता है। ज़रूरत पड़ने पर आप मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो। एग्जाम्पल, we were doing audit of a mining company. The work of that company was doing mining, extracting minerals and selling the minerals. माइनिंग के लिए इन्होंने एक्सपर्ट्स को हायर किए थे जो इंजीनियर्स थे फ्रॉम IIT। ये इंजीनियर्स माइन के सैंपल्स निकालते थे, लैब में ले जाते थे, सैटेलाइट इमेजेस को यूज़ करते थे और देखते थे कि कौन से एरिया में मिनरल्स ज़्यादा है, कौन से एरिया में मिनरल्स कम है, व्हाट इज़ द मैच्योरिटी ऑफ द मिनरल्स, कौन से मिनरल्स मैच्योर हो चुके हैं जिसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन से मिनरल्स हैं जिनको अभी रुक के बाद में निकालना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में ऑडिटर के पास चॉइस नहीं है, उसे सबूत तो चाहिए, तो वो मैनेजमेंट के हायर किए हुए एक्सपर्ट की मदद ले सकता है। अगर वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की मदद लेता है तो सबसे पहले ऑडिटर को खुद को देखना चाहिए कि वो खुद अपने आप कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकता है। ऐसे कौन से एरियाज़ है या ऐसी कौन सी डिफ़िकल्ट एरियाज़ है जहाँ पे उसे एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। He cannot use management's expert as a excuse to his work. जो काम वो खुद कर सकता है वो उसे ही करना पड़ेगा। जहाँ पे एक्सपर्ट की मदद लेनी है वो एक्सपर्ट की मदद ले सकता है। जब एक्सपर्ट आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है, उस इंफॉर्मेशन को हमें इवैल्यूएट करना है कि वो क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज सफिशिएंट है और अप्रोप्रिएट है। जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, हमने जो सोच रखा है उसे सपोर्ट करता है
या हमने जो सोच रखा है उसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, या फिर हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली जिसके बेसिस पे हम अपना ओपिनियन दे सके। तीन चीज़ें हो सकती है, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्राडिक्टिंग इंफॉर्मेशन, और देयर इज नो इंफॉर्मेशन एट ऑल। अगर ऐसा होता है तो इन दैट सिचुएशन ऑडिटर किस तरीके से ओपिनियन देगा और ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। जहाँ पे एविडेंस सपोर्ट करता है तो हमारा काम इजी हो गया, वी कैन इजीली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, यूज इट एज अ एविडेंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन। जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे वी विल हैव टू एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर्स, collect more evidence and accordingly we will give our opinion। और जहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, there is absence of information, तो मैनेजमेंट से राइटिंग में ले लो कि इस एरिया में हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैनेजमेंट आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या तो आप ऑडिट छोड़ दो या तो फिर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो। ठीक है। ऑडिटर जब भी एविडेंस इकट्ठा करता है उस एविडेंस को बहुत अच्छे तरीके से ऑडिटर पहले तो वो ऑब्टेन करता है, ऑब्टेन करने के बाद उसे इवैल्यूएट करता है। ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर मेथड्स ऑफ प्रोसीजर्स यूज़ करता है, जस्ट अभी सीखा। इंस्पेक्शन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, कंफर्मेशन करता है, कैलकुलेशन करता है, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी। ये सारे प्रोसीजर्स करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा मिली है उस इकट्ठा किए हुए इंफॉर्मेशन को देखो, कैन बी यूज इट एज अ एविडेंस। ऐसे 200 का यहाँ पे रेफरेंस दिया है। क्या बोला है? देखो ऑडिटर, आपका काम सिंपल है, आपको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है, आपको ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, आपको सबूत इकट्ठा करना है और उसके बाद कंक्लूजन पे आना है जिससे पढ़ने वाले को रीजनेबल अश्योरेंस मिल सके that the financial statements are free from material misstatements and there is very less audit risk. Audit risk means chances where we land up giving wrong opinion. तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम ऑडिट प्रोसीजर्स करें ताकि हम गलत नतीजे पे पहुँचे ऐसा हो ही ना, और ऐसे होने के चांसेस बहुत कम हो। हमने जो एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब हमने अच्छी तरीके से ऑडिट किया है डिज़ाइनिंग में, मतलब प्लानिंग स्टेज पे, एग्जीक्यूशन स्टेज पे, रिपोर्टिंग स्टेज पे हमने सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट अप्लाई किए हैं। ओके।